So today we are discussing about waves. Waves is a topic which is done after SHM. The reason is because in waves, SHM will be used. Okay. Now waves are of two types, transverse and longitudinal. So whatever be the type of the wave, there will be use of simple harmonic motion in order to solve it. How it will be used, why it is important, that I will show you. नाउ सबसे पहले हम लोग पहले ये देखते हैं कि वेव क्या चीज होती है. ठीक है, वेव का टारगेट क्या होता है, वेव व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वेव. ठीक है, तो वेव बेसिकली एक टूल है फॉर एनर्जी ट्रांसफर. इट इज अ टूल फॉर एनर्जी ट्रांसफर. ठीक है, उस चीज को हम वेव कहते हैं. अब वो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफर हो सकती है. ठीक है, बट अल्टीमेटली वेव का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को लेके जाना. ठीक है, Okay. तो वेव इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. इज इट ओके? अब आप देखती हो कि सन से हमारे पास अर्थ पे लाइट आती है. ठीक है, एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम सन, राइट? उसी से पूरी दुनिया चल रही है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेव्स. ओके, when you speak, your sound energy goes from your mouth to the ear of the person that is listening to you. So that sound energy is traveling through that medium. That is also a wave. Okay. And when you take a rope and you just shake it up and down, there is a traveling wave inside it that also flows through the string. Actually, that is also a wave. Okay, so there are different modes of transferring energy actually. Okay. Based on that, we make two classifications. One is mechanical wave, and the other is non-mechanical wave. Non-mechanical wave. Now, अब दो क्लासिफिकेशन होते हैं. नॉन मैकेनिकल वेव, एज द नेम सीम्स टू बी, इसमें क्या होता है, इसमें होता है बिना किसी मीडियम के यूज के हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं. we don't have to use any medium in that. Okay. For example, जब सन से अर्थ पे हीट और लाइट आती है, there is no medium in between, it's a vacuum. Okay. So those particular waves which are coming from the sun to earth, they are non-mechanical wave because they are not using any medium to propagate. Okay, so basic feature is these waves propagate. You understand the word propagate? Yes. है ना? Propagate without any medium. Without any medium. समझ में आता है तेरे को? हाँ. Example, electromagnetic waves from sun. क्या बोलते हैं उनको? Electromagnetic waves. Sorry. Electromagnetic waves coming from sun on earth. है ना बेटा? हाँ. ये इनका एग्जाम्पल है. तो इसमें they don't need any medium. They travel through the vacuum. Okay. Next is mechanical waves. So what are mechanical waves? Mechanical waves क्या होंगी? They need a medium to propagate. Exactly. They need a medium to propagate. Example, string wave and sound wave. Okay. String wave has a medium which is string. Okay. And sound wave has a medium that could be air, that could be water. Sound can travel through air, sound can travel through water. But if we generate vacuum inside a room and then we speak something, then that sound will not be carried to the listener's ear. Okay. So there has to be something in between the two persons. Okay. Okay. So they need a medium to propagate, and there are two types of it, which we will be studying now. One is string wave. There are two examples to it. One is like string wave,
where string is the medium, where string is the medium. एक तो ये वेव होता है, and second is sound wave. Second क्या होता है बेटा? Sound wave. यहाँ मीडियम क्या होता है? Where there has to be medium in between. Sound can travel through solid also. Okay. कभी तुमने वो किया है बचपन में, छोटे छोटे डब्बे लेके उसमें एक धागा बांध के और इधर से बोला है, इधर सुना, ऐसा किया होगा ना? So वो जो डोरा होता है ना, डोरा, I mean जो जिसको थ्रेड बोलते हैं, so that through that thread sound is propagating. Okay. Okay. Where sound wave, where medium can be air, liquid और gas. समझ गई? तो हम जो वेव्स पढ़ने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर वो मैकेनिकल वेव्स है. नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी है? ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. बराबर? इनको हम नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं. इतना चमक गया तेरे को? हाँ. अभी वेव्स में जो स्ट्रिंग वेव होती है उसमें हम लोग रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं. तो जो एनर्जी है, जो भी एनर्जी होती है, वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाती है. सॉरी, जो पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, एनर्जी जाती है. ओके. ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ वाले पार्टिकल को उठा के हिला रहे हैं तो वो पार्टिकल चल के आगे पहुंच गया. नो, वो जो लूप चलता है वो लूप क्या होता है? एनर्जी होती है वो. बराबर है? तो पार्टिकल्स नेवर गो, दे ओनली ऑसिलेट. दे, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. दे ओनली ऑसिलेट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अप एंड डाउन और टू एंड फ्रो, एंड एनर्जी गेट्स प्रोपोगेटेड. ओके. तो ये इसीलिए इसमें एसएचएम का यूज होता है, क्योंकि वेव्स आर मेड अप ऑफ, मैकेनिकल वेव्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स परफॉर्मिंग एसएचएम. ओके. अभी तक हमने एक पार्टिकल का एसएचएम पढ़ा था. अब let's say there are 1,000 particles and thousands of them are involved in doing SHM together in a wave, because through that SHM they are propagating energy from one place to another place. Are you getting the feel what I'm saying? Yes. But the particle itself is not going anywhere. Okay, है ना? तो होता क्या है, अब मैं मैकेनिकल वेव के बारे में डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ. ठीक है, मैकेनिकल वेव. Okay. तो मैकेनिकल वेव में क्या होता है बेटा? मैकेनिकल वेव में the particles oscillate at their position which facilitates the energy transfer. But particles, बताओ क्या बोल लिखना चाहिए मेरे को? But particles don't perform, I don't know. But particles don't move from one place to another. Okay, समझ गई ना? But particles don't move from one place to another place. तो फिर move क्या करता है बेटा? Energy transfer होता है. Exactly. तो move करता है energy. Energy move करता है. रुक जा, है ना? So there is a movement of energy basically. है ना? ऐसा होता है. मैकेनिकल वेव ये होती है. अब मैकेनिकल वेव में भी there are two types. One is transverse wave, one is longitudinal wave. है ना? तो होता क्या है, देख मैं समझाता हूँ तेरे को. जैसे कि मान ले तेरा यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है. अब वो ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ना? ऐसे करके ऊपर नीचे हो रहा है. पार्टिकल तो मूव कर नहीं रहा, और तेरी एनर्जी जो है वो आगे की ओर जाती जा रही है ऐसे. तो ये वाले वेव कहलाते हैं ट्रांसवर्स वेव. कौन से कहलाते हैं? ट्रांसवर्स वेव. हाँ, ट्रांसवर्स वेव होते हैं जो रस्सी में बनते हैं. बराबर है? उसके अंदर क्या होता है? द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी इज परपेंडिकुलर टू द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स. समझ गई क्या? हाँ.
तो यहाँ पर पार्टिकल्स तो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं और एनर्जी ऐसे प्रोपोगेट कर रही है। मीडियम की जरूरत है हमको। तो बेसिकली ये जो वेव है, ये वेव तेरा है ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। क्या इसका बेसिक फीचर है? कि ऑसिलेशन पार्टिकल्स का और एनर्जी ट्रांसफर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, तो बेसिकली द रीजन, द बेसिक थिंग फॉर दिस इज the oscillation of particle is perpendicular to the direction of energy transfer. Okay, the oscillation of particles is perpendicular to the direction of energy transfer. Energy transfer. Got it? हाँ. So example of these kind of waves is string wave. ठीक है? हाँ. वो स्ट्रिंग में जो लूप बनता है ना, ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है. हाँ. But actually there is the particle is not moving anywhere. Okay? इतना बात समझ में आ गया? हाँ. अभी नेक्स्ट जो वेव होगा, ये तो एक पहला टाइप हो गया हमारे पास, इसमें मीडियम स्ट्रिंग बनी है. दूसरा हो गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल वेव. अच्छा, ये सारे प्रोग्रेसिव वेव कहलाते हैं, दोनों के दोनों. प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है. ठीक है? और एक और टाइप आगे आता है स्टैंडिंग वेव में एनर्जी लॉक हो जाती है एक जगह पे. ओके. तो प्रोग्रेसिव वेव, हम प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं. प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होता है जिसमें एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेसिव वेव ओनली राइट नाउ. प्रोग्रेसिव वेव्स, ये दोनों के दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स हैं. क्योंकि इन प्रोग्रेसिव वेव्स में इट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, फ्रॉम वन टू अनदर. तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव वेव्स राइट नाउ. These are like progressive waves because the word progressive itself shows that is a transfer of something. Okay. So we are talking about progressive waves. Okay, fine. अभी longitudinal wave में क्या होता है? Longitudinal waves में साउंड जब प्रोपोगेट करती है तो पार्टिकल ऐसे होते हैं. ठीक है? ये पार्टिकल मीडियम के हैं, बराबर. जैसे एयर हो गई, उसके पार्टिकल हैं, बराबर ना, ऐसे करके होते हैं. और अभी ये लोग ऑसिलेट ऐसे ऐसे करते हैं, आगे पीछे एक दूसरे को टक्कर मार के एनर्जी को देते हैं ये लोग, है ना. ऐसे कर करके ये ऑसिलेट करते हैं. और एनर्जी कैसे जाती है? पैरेलल टू देयर ऑसिलेशन. द साउंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड लाइक दिस. तो ट्रांसवर्स में और इसमें अंतर समझ में आया? हाँ. क्या लिखे हूं मैं? ट्रांसवर्स में ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द एनर्जी ट्रांसफर. एनर्जी प्रोपोगेशन डायरेक्शन is parallel to the oscillation of medium particles. Is parallel to the oscillation of medium particles. समझ गई ना? हाँ. ऐसा सीन होता है. तो वेव्स का बेसिक पार्ट समझ में आ गया. हाँ. अभी हम लोग ट्रांसफर वेव को भी पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव को पढ़ेंगे. इन पे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे. और बाद में हम स्टैंडिंग वेव भी पढ़ेंगे. स्टैंडिंग वेव का नाम होता है स्टैंडिंग. दैट व्हाट डज दैट मीन? The energy is not getting propagated from one place to another. The energy is locked between the 2 points. Is it okay? Yes. चलो, बहुत बढ़िया. अभी बुक ओपन करो. बुक ओपन करो. अभी हमको यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव करके जो दे रखा है, इसमें हम लोग प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखना सीखेंगे. ठीक है? क्योंकि हमें प्रोग्रेसिव वेव को लिखना आना चाहिए. तो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ तक पूरा सीख जाएंगे, है ना. और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम सीख जाएंगे, बराबर.
हमारा यही टारगेट रहेगा कि प्रोग्रेसिव वेव का हम इक्वेशन लिखना सीखें, और उस इक्वेशन को देखकर हम कंक्लूजन निकाल पाए कि जो हमारा वेव है उसके कारण जो एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, कितना वेव का वेलोसिटी है ना, वो सारा चीजें हम उस इक्वेशन को देखकर पता लगा लेंगे। अंडरस्टूड? सो आवर टारगेट इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ एनी वेव, एनी प्रोग्रेसिव वेव। ओके, दैट इज अवर टारगेट नाउ। अंडरस्टूड? अभी इसमें जितनी भी चीजें आएगी उनको हम नेमिंग करना सीखेंगे, सारी चीजें हम सीखेंगे, उससे हम क्या क्या इंटरप्रिटेशन लगाएंगे वो भी हम सीखेंगे। अभी तू इंट्रोडक्शन से चालू कर, ठीक है? और यहाँ तक आ जा, और जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अपन अंडरलाइन करते चलते हैं, मार्क करते हुए। ओके, स्टार्ट करो। हाँ, पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया तूने? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, पढ़ लिया तो 1 मिनट मेरे को टाइम दे, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे कवर कराऊं तुझको। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग 15.3 कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना? और 15.2 और 15.1 देख। अभी देख 15.2 देख, सेक्शन उतना, ये वाला बुक खोल ले, है ना? । 15.2 का पहला वाला और दूसरा वाला देखो। पढ़ो उनको। लाइट वेव कौन सा वेव है, मैकेनिकल है नॉन मैकेनिकल है, पहले ये बता। नॉन मैकेनिकल। बिल्कुल सही है, उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, है ना? ओके, साउंड वेव कैसा है, मैकेनिकल है, और मैकेनिकल होने के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल भी है। तो जो पहला पार्ट है वो तो गलत हो गया, क्योंकि साउंड वेव वैक्यूम में नहीं चल सकता। हाँ, नहीं, वो फर्स्ट और सेकंड तो नहीं है, क्योंकि साउंड वेव इज लॉन्जिट्यूडनल। चलो चलो, अभी देखो ऑप्शन सी। पर अगर सर कुछ मीडियम ही नहीं होगा तो मतलब ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडनल का मतलब ऐसे ये नहीं आएगा क्या, मतलब? नहीं, उसमें आता है, उसमें अपने को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, जब वो ट्रांसफर होती है, तो जैसे लाइट ऐसे चल रही होती है ना,
और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ऐसे करके दो फील्ड होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का जो प्लेन होता है वो करस्पॉन्डिंगली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कैटेगरी आती है नॉन मैकेनिकल वेव की, ये ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में आती है। ओके, सी आएगा ऑप्शन तो फिर। हाँ, बस ये चीज तेरे को याद रखनी है, जो लाइट है इट इज अ ट्रांसवर्स वेव बिकॉज एनर्जी ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़। एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। पढ़ो। डी ऑप्शन। लीनियर मोमेंटम कब से ट्रांसफर होने लग गया? मैंने तो बताया नहीं लीनियर मोमेंटम के बारे में। वो टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक में है? हाँ, ऐसा मुझे पढ़ा ऐसा लगा। कहाँ पढ़ा तूने? बताना जरा, कौन सी लाइन आ गई यहाँ पे? एक मिनट। लीनियर मोमेंटम तो तब ट्रांसफर होता है जब पार्टिकल हाँ, ट्रांसफर इन होता दिस first, second, third, fourth, fifth, sixth line. In this process, energy and momentum are transferred from one particle to another. है। तो ये तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जा रहा है ना, टोटल मोमेंटम पूछ रहा है वो। The quantity is transmitted in the propagation direction r. Okay, चेक करो। सिर्फ एनर्जी है। एनर्जी अलोन, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी यहाँ पे इसने मोमेंटम कैसे यहाँ पे लिख, एक मिनट रुको। मैकेनिकल वेव, thus a wave carries or transfer energy from one point to another, but there is no transfer of matter or particles of the medium. वो तो ये बता रहा है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को मोमेंटम दिया, बट ओवरऑल मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो रहा है बेटा। ओके। मतलब अगर दोनों का कंबाइन देखूं तो एक को आगे मिला तो एक को पीछे मिला, तो मोमेंटम इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू। Thus wave carries or transfers energy from one point to another. Okay. We are talking about एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या जा रहा है, from we are not talking about one particle to another particle क्या जा रहा है, बराबर ना? हाँ। तो effectively energy propagate हो रही है, okay, and there is no transfer of matter or particles of the medium in which the wave is traveling. Is it okay? हाँ। इतना समझ में आ गया? हाँ। अब electromagnetic waves do not require material medium. These are non-mechanical waves, ये हमने पढ़ी लिया है। यहाँ तक तेरा काम खत्म हो गया? हाँ। चल, प्रोग्रेसिव वेव में क्या पढ़ा तूने? Have you seen ripples in water? और वो सारा the disturbance slowly spreads and distance gets distributed. Wave particles short duration oscillate about their position of rest for a short time. They are not bodily moved from their respective position. ये सबसे important बात है। Okay, only the energy gets propagated through them. This disturbance caused by the stone is actually a wave pulse. It is disturbance caused locally for a short duration. A wave in which the disturbance produced in the medium travels in a given direction continuously without dampening and obstruction. It is called progressive wave or traveling wave. ठीक है ना? बस तो अच्छा, अभी जो प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग वेव होती है इसके अंदर दो कैटेगरी है, एक तो है स्ट्रिंग वेव और एक है साउंड वेव। ठीक है क्या? हाँ। अब स्ट्रिंग वेव के अंदर आपको क्रेस्ट एंड ट्रफ मिलते हैं, साउंड वेव के अंदर आपको कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मिलते हैं जब वेव ट्रैवल करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव की बात करते हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव और traveling wave, right? तो हमें क्या मिलता है, देखो ध्यान से। प्रोग्रेसिव और ट्रेवलिंग वेव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह से बनती है ये। एक तो ऐसे, ये रस्सी के अंदर ऐसे बनती है, ठीक है? एक मिनट, जैसे ये तो मैंने रस्सी ले ली लगभग, अभी रस्सी कभी ये पार्ट ऊपर जा रहा है, ये पार्ट नीचे जा रहा है, ये पार्ट ऊपर जा रहा है, तो
ये तो कहलाता है आपका ट्रफ. हम्म. ट्रफ. ओके. एंड दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट. क्रेस्ट. हाँ. क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऐसा ऐसा. हाँ. ठीक है. अभी ये वाले पॉइंट जो होते हैं ना, जो यहाँ होते हैं, ये कहलाते हैं नोड्स. हम्म. दे आर कॉल्ड नोड्स. एंड दीज अपर पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स. हम्म. समझ रही है क्या? हाँ. नोड्स और एंटी नोड्स के बीच की जो दूरी होती है भैया, वो कहलाती है एम्पलीट्यूड. ये जो दूरी क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड. है ना? हाँ. एम्पलीट्यूड. अभी नोड वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पे है, मीन पोजीशन पे. वो ये तुम्हारी मीन पोजीशन है. ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन. अभी थोड़ी देर बाद ये जो पार्टिकल है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये इधर एसएचएम मार रहा है, इधर ऐसे करके. ये पार्टिकल मीन पे भी आएगा, फिर नीचे भी जाएगा, ऐसे करके वेव प्रोपोगेट हो रही है. हाँ. अभी ये वाला पार्टिकल भी एसएचएम मार रहा है, ये भी ऊपर इतना जाएगा, लेकिन इस समय ये मीन पे है, ये वाला. अरे समझ रही है? हाँ. जो भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. हाँ. जो भी पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता है उसका स्पीड 0 होता है. जीरो बराबर होता है. हाँ. है ना? तो वो हाँ. एंटी नोड वाला पार्टिकल कहाँ माना जाता है? एक्सट्रीम पे. एक्सट्रीम पोजीशन. एंड इट इज एट रेस्ट. ओके. हाँ. और जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है, ये दिस इज एट मीन पोजीशन हैविंग मैक्सिमम स्पीड. मीन पोजीशन हैविंग मैक्सिमम स्पीड. समझ में आ रहा है तेरे को मैं क्या समझा रहा हूँ? हाँ. तो ये जो वेव है, ये जो मैंने बनाई, ये ट्रांसवर्स वेव है. ठीक है. क्योंकि इसमें जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं और एनर्जी ऐसे जा रही है. कौन सी वेव है ये? प्रोग्रेसिव. अबे प्रोग्रेसिव तो है ही सारी वेव्स. प्रोग्रेसिव की भी वैरायटी है ना बेटा. ट्रांसवर्स. राइट. तो ये वाला वैरायटी हमारा जो है, जो मैं बनाया है, वो ट्रांसवर्स वेव है. ट्रांसवर्स. समझ गई? हाँ. इसी को हमको बहुत अच्छे से समझना है. इसके अंदर सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए अगर हमें वेव का इक्वेशन लिखना सीखना है तो. बराबर ना? एम्पलीट्यूड समझ में आता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? अच्छा, बहुत बढ़िया. अभी रफ कॉपी और पेन निकाल रखा है आपने? हाँ. अभी ऐसा करो, इसका मुझे वेवलेंथ बना के दिखाओ. वेवलेंथ कहां से कहां तक की लंबाई होगी? डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड अनदर क्रेस्ट. ओके, वो बात भी सही है तुम्हारी. जैसे कि मान लो मैंने एक ट्रैवलिंग ट्रांसवर्स वेव को ऐसे बनाया, ऐसे बनाया मैंने. हाँ. ठीक है. और ये तुम्हारी इस टाइप की मीन पोजीशन है. तो वेवलेंथ तुम कैसे भी नाप सकती हो. वेवलेंथ यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हो जाएगी. इसको भी हम वेवलेंथ बोलेंगे. ओके. इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा. दिस इज वेवलेंथ. ओके. ओके. वेवलेंथ. या फिर जो तुम बोल रही हो कि एक क्रेस्ट ले लिया और यहां से नापा, तो वो भी वेवलेंथ कहला सकता है. या फिर ट्रफ टू ट्रफ भी बोल सकती हो. हाँ. तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ. ओके. अच्छा, अभी इसका प्रोपोगेशन हो रहा है. इसका प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स में, वाई में? एक्स में. वाई में तो पार्टिकल ऑसिलेट मार रहे हैं ना. हाँ. है ना? ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट मार रहा है, ये वाला पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट मार रहा है. वो बात अलग है, अभी मीन पोजीशन पे है. ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है, ये यहाँ था रस्सी में, ये यहाँ आया हुआ है ना? तो ये वाला पार्टिकल जो था रस्सी में, वो अभी यहाँ आया हुआ है. बराबर ना? ऐसे करके सारा काम चल रहा है. और एनर्जी ऐसे जा रही है. एनर्जी एक्स में आ रही है. अब ये अगर मैं स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन बोलूं, लेट्स से स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन v बोल देता हूं. ये क्या है? स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन. तो दो चीजें तुझे समझ में आ गई अभी तक. लैम्डा समझ में आ गया, v समझ में आ गया. बराबर. लैम्डा का यूनिट क्या होगा? मीटर. होगा नहीं होगा? हाँ. v का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. तो देखो, v स्पीड से चल रही है. हाँ. अब अभी मैं बोलता हूं t टाइम में ये वेव a से लेकर b तक चली गई, तो t टाइम में ये दूरी कितनी हुई? vt. एंड vt बराबर लैम्डा हो गया. हाँ.
तो ये जो t आया वो आया लैम्डा बाय v. This t is called time period. Okay. This t is called time period. Are you getting it? और बेटा टाइम पीरियड का उल्टा करेगी तो क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी. ये समझ में आया? तो टाइम पीरियड इज द टाइम इन विच वेव ट्रेवल्स इक्वल टू द वेवलेंथ. ओके. अभी हम लोग इसका उल्टा करते हैं तो हमें मिलता है F बराबर V बाय लैम्डा. तो V बराबर F लैम्डा आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया हमारे लिए. V क्या है? वेलोसिटी. Velocity of propagation. F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव. फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, है ना? और ये क्या है? वेवलेंथ. ये रिलेशन हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. समझ में आता है तेरे को? समझ में आया बेटा मैंने जो बोला? अभी जब हम वेव का इक्वेशन लिखेंगे, अच्छा उसमें ए क्या है? ए क्या है? एम्पलीट्यूड है. ए क्या है? एम्पलीट्यूड है. अब वेव के इक्वेशन में एक बड़ी मजेदार बात है. जो वेव का पैटर्न है ना, वेव का पैटर्न वो दो डायमेंशन में चेंज हो रहा है. एक तो एक्स में भी अलग अलग है और टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेव है, वो मैंने मान ले ऐसे बनाई अभी, ठीक है? ये किसी दिए गए टाइम पे है, तो उसके जस्ट अगले टाइम पे होगा क्या कि यही वेव ये यहां पर, तो मतलब उसके जस्ट अगले टाइम पे क्या होगा कि जो वेव इसके पीछे थी वो तो आगे आ जाएगी. ये वेव ऐसे आगे चली जाएगी. ऐसे ऐसा होगा ना. तो यहाँ पर जो पार्टिकल यहाँ था वो अब यहाँ आ गया, है ना? जो पार्टिकल यहाँ था वो थोड़ा नीचे आ गया. तो लाइकवाइज द वेव इज गेटिंग प्रोपोगेटेड, है ना? अब तू ध्यान से देख कि ये टाइम मान ले t1 था, ये टाइम t2 है, t3 में और आगे चली जाएगी. तो वेव x के साथ भी अपना y बदल रही है और टाइम के साथ भी बदल रही है. देख, ये जो पार्टिकल था ये किस t1 टाइम पे इस पोजीशन पे था और यही पार्टिकल t2 टाइम पे इस पोजीशन पे है. दोनों बदल रहे हैं, राइट? तो x भी बदलता x ऐसे नहीं बदल रहा है कि पार्टिकल आगे जा रहा है, लेकिन एक गिवन x पर टाइम के साथ चेंज आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसका मतलब वेव के अंदर जब भी आप कोई भी फंक्शन लिखोगे तो उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक तो x और एक t. Okay. So wave is always a function of two things. One is x and one is time. Wave has to have two variables. That is position and time. Position and time. Time. इतना समझ आ रहा है?